नमस्कार। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स के 10th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस 10th एपिसोड को स्पेशल बनाने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह इज एन ऑथर, शी इज एन एजुकेशनलिस्ट, शी इज अ लाइफ स्किल मेंटर एंड शी बिलीव्स दैट द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद लर्निंग। उनकी अपनी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे आया जब शी वॉज ब्लेस्ड विद मदरहुड एंड शी wanted to have that special bond with children. She wanted to understand the child psychology and how parents can better connect with children so that we can raise the children in a happy manner rather than being in a chaotic and overwhelming state of mind. सो लेट्स वेलकम ज्योति सिंह। थैंक यू ज्योति कि आपने आज टाइम निकाला और हमारे साथ आज आप यहाँ पे जुड़ पाए। आई वेलकम यू टू द 10th एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। Yeah, thank you so much, Poonam. I mean, it's truly an honor to be here at your platform, wherein I really appreciate the way you are also empowering the youth and the individuals around through your coaching, through your wisdom. And it's always a pleasure to connect with you. थैंक यू सो मच। तो हमने शुरुआत आज इसी तरीके से करना चाहेंगे ज्योति, कि होता क्या है, मदरहुड जितने ज़्यादा प्लेजर लेकर के आता है, एक कंटेंटमेंट लेके आता है, उतनी ही ज़्यादा उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एसोसिएटेड होती हैं। और होता ये है कि मदर्स दे आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग, स्पेशली इफ दे आर वर्किंग। तो उनके पास अपना वर्क भी है, होम भी है और बच्चे भी हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू try to strike a balance amongst all of these. एंड मेनी अ टाइम्स इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारे सर पे, एंड वी फील गिल्टी व्हेन वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन एनी एरिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मदरहुड। तो आपसे हम कुछ इस तरीके की टिप्स जानना चाहेंगे कि मदर्स ऐसा क्या कर सकती हैं, लेडीज ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे दे कैन बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर दे आर मोर रिलैक्स्ड सो दैट दे कैन डू देयर बेस्ट इन विच एवर फील्ड दे आर परसुइंग। Yeah. So as very rightly said, Poonam, that I think ये जो motherhood वाला transition है, that is difficult for most of the women because हमें ये तो बताया जाता है कि बच्चे को nurture कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, but nobody talks about. I mean, this is very sad part in our Indian society that we are not talking about the mother who is actually going through so much of physical changes है, Absolutely. body में इतने हैं, emotional, hormonal changes. And once the child is born, the entire attention is on the child, not on the mother. Mm. Let me tell you, the most pampered, I think it has to be done to a mother. Because at that moment वो emotionally, physically इतना weak रहती है that all that she need is support and the good vibes around her. Absolutely. So most of the time वो नहीं होता due to some family dynamics issues या फिर कुछ ना कुछ होते हैं relationship issues maybe with the elders or people around. So it is very important that mother take responsibility of herself, Mhm. have good people around her, अंदर जो emotions है because I have myself witnessed it 2 3 years I was very emotionally low. ऐसा नहीं है, Mm. I didn't had a good support system. My husband was supportive, my in-laws were supportive, but कहीं ना कहीं I think I was sinking into my own thoughts, that maybe I'm not good. Like ऐसा लगता था कि घर में ही life हो गई है because that monotonous routine early 6 months, 1 year, and then somewhere you feel lost about yourself. Right. So it is very important you keep connecting with your friends once in a month or a week. Go out, connect with your friends so that you feel lively. So I think it is very important you honor yourself. अपनी जिंदगी भी है, you are also an individual. So अपना भी ध्यान रखना है, prioritize yourself, which is the most important, I think, learning I learned आगे जाके, that जब तक मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी, I'm not going to fill my son's need, my family's need, my spouse need. So it is very important fill your own emotional cup. अब वो आपको फिगर आउट करना है, आप अपना ये इमोशनल कप कैसे फिल आउट करोगे फ्रेंड्स के साथ, मे बी बाय वॉचिंग अ मूवी और लिसनिंग टू अ म्यूजिक और रीडिंग अ बुक, सो दैट यू नीड टू फिगर इट आउट and just live for yourself also. That is Absolutely. at most important, and have good support system around you so that whenever you need it, ask for help. I think this is also one more thing. I was like being conditioned, not conditioned, but environmental factors ऐसे होते हैं that सब कुछ हमें ही करना है. So it is very important, no, सब कुछ आपको नहीं करना. There are people who are ready to help you out. The only thing you have to do is go and ask help.
So I think this Absolutely. is very important for women, especially mothers, new moms. Do take care of yourself because you matter the most in this entire journey. एब्सोल्युटली वेल सेड। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस तरीके से चीजें चली आ रही हैं उनको थोड़ा सा जब चेंज करने वाली Change करना. टाइम आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है सिचुएशन, बट Yeah, आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट वी टेक दैट स्टेप, वी टेक दैट ओनस ऑन आवरसेल्व्स। क्योंकि जब हम अपने आप ख्याल रख सकते हैं, जब हम एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हैं, तभी हम जो है वो हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं। वो कर लव और सकते केयर हैं. हम अब उस बच्चे को भी मतलब प्रॉपरली चैनल कर सकते हैं। तो दो जो इम्पोर्टेंट बातें ज्योति ने कही, दैट इज कनेक्ट विद योर सेल्फ। जो भी आपकी हॉबीज हैं या जो भी वो चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, चाहे वो खुश आपके फ्रेंड करते सर्कल से मिलना हो, आपकी पसंद का म्यूजिक सुनना हो, आपकी कोई हॉबी हो जिसमें आप इंडल्ज करना चाहें, आप उसमें करें। ताकि वो जो एक वॉइड क्रिएट होने लगता है मदरहुड के बाद, क्योंकि हमारा पूरा टेंशन, हमारी पूरी अटेंशन, हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ बेबी को रेज करने में जा रही होती है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेंटली और फिजिकली दोनों में से ही बहुत वीक हो जाते हैं। एंड नंबर टू इज आस्क फॉर हेल्प। आपके आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से, या अगर अपनी फैमिली में नहीं भी हैं देन यू कैन हायर हेल्प, सो दैट दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड और Absolutely. सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली अपने ऊपर लेकर के ना करनी पड़े, ताकि आप भी एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहें और बच्चे को भी जो है वो अच्छी वाइब्स वो और वो हैप्पीनेस और जॉय शेयर कर सकें बच्चे के साथ भी। जब बच्चे छोटे होते हैं, चलिए तब वाली बात तो हो गई। अब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग स्टबन एट टाइम्स, और दे वुड स्टार्ट Hmm. थ्रोइंग टेंट्रम्स फॉर थिंग्स दैट दे वुड वांट। और आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले हैं, और ये एक और साथ में ऐड ऑन हो जाती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम खुद काम रह सकें उस chaos में, एंड वी कैन हैंडल इट इन अ वेरी फर्म वे रादर देन बीइंग अग्रेसिव, है ना। जब चिड़चिड़ाहट के Yes. मारे वो जो गुस्सा आने लगता है, उसको थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा असर्टिव, अपनी बात असर्टिवली रखें हम किस तरीके से, और पहले खुद तो स्टेट ऑफ माइंड में आए कि वो सारी चीजें हम I हैंडल कर सकें, बिकॉज दैट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। Absolutely. And your question took me back, I think during way back 2020 when my son was 3. So छोटे में he was very, very cool, calm. इतना तंग भी नहीं किया था in early days. But when he started crawling, walking and जब बोलने लगा and when I used to stop him, don't do this. तो वो मेरी पूरी टेस्टिंग होती थी और वो वही हम्म। करता था जो उसे करना होता एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू लूज द टेम्पर बिकॉज पता नहीं होता था एंड हमने शुरू से ये देखा है कि अगर पेरेंट्स मना करे द चाइल्ड हैज टू स्टॉप we have been conditioned, वो एक बार में बात सुन लें, he was not doing that. And that was the time when I realized there is something which I'm not doing right. And that lead me to learn more about parenting. So हम्म। parenting मैंने सीखी, I learned for myself, but then I realized this is the most, I think, need of an hour because a lot of parents are struggling. So what I learned was truly transformative. That gave me a new lens to see child. सबसे हम्म। पहले तो हमें अपने अंदर क्या है एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर व्हाट इज इनसाइड अस बिकॉज ऑलवेज हमारे माइंड में इतनी सी स्पेशली अ मदर उतनी टू डू लिस्ट चलती रहती है उसमें बच्चा अगर हमारी टेस्टिंग कर रहा है हम क्या करेंगे वी लूज आवर सेल्फ वो टेम्पर लूज होगा गुस्सा आएगा तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले तो वी डोंट हैव टू रश कई बार हम इतना भाग रहे होते हैं दैट हमें वो बच्चे का वो एक छोटा सा भी एक ट्रिगर है ना बहुत ज्यादा वॉल्केनो इरप्ट कर देता है. So हम्म। let's calm down and let us understand a child is going to act like a child and we have to act like an adult. Let's not be a child. We have हम्म। to understand बच्चा बच्ची की हरकतें करेगा ही करेगा वो उसका डेवलपमेंटल स्टेज है दे आर एक्सप्लोरिंग दे आर लर्निंग उनको हर चीज बाहर एनवायरनमेंट में दे फील लाइक क्यूरियोसिटी होती है एंड इट्स आवर वे हाउ वी मेक देम अंडरस्टैंड हम्म। फॉर एग्जाम्पल वो टैंट्रम्स भी शो कर थ्रो कर रहा है वी डोंट हैव टू रिएक्ट लेट्स बी काम थोड़ा सा हमने इग्नोर करना अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है एंड वंस द चाइल्ड इज काम वी कैन टेक हिम आउट एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट what was bothering him. हम्म। हमारी सबसे बड़ी गलती एज अ पेरेंट क्या होती है when the rod is hot हम उसी के टाइम पे we want to correct him which is हम्म। actually very wrong. It is very important that we take a pause because heat of the moment में कुछ नहीं होना हम भी नहीं सुनेंगे ना बच्चा सुनने वाला. So it's हम्म। like just venting out and there is no improvement in the behavior. So if the child is very throwing tantrums या फिर कुछ ऐसा behavior कर रहा है जो हमें नहीं अच्छा लगता आप कह दो कि बेटा ये ठीक नहीं है
Once you are calmed down, we can talk about it. Let the child calm down 5-10 minutes. By the time आप भी deep breathe कर सकते हो, यहाँ वहाँ move around कर सकते हो. And once the child is in that state, तब आप उसको समझा सकते हो कि सी बेटा, ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे. आप मुझे इस तरीके से भी बोल सकते थे. जरूरी नहीं है हर हम्म। बार हमें चिल्लाना है या वॉइस रेस करना. वी कैन यूज अ सॉफ्टर टोन ऑल्सो विच लुक्स मोर रिस्पेक्टफुल. तो इस तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना सिखाना है. एंड जब हम बचपन से ही बच्चों को ये सब चीजें क्लैरिफाई करेंगे, ट्रस्ट में टीन एज आते आते दे विल बी मोर क्लियर हाउ दे हैव टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. तो जो आप कह रहे हो कि एक तो जब वो आर्ग्यूमेंट वाली स्टेट में है और जब एक टेंट्रम वाला फेज बच्चे का चल रहा है, या तो एज बच्चे की अभी सेंसेस पूरी डेवलप नहीं हो पाई होती हैं, तो वो कंट्रोल उनके अंदर नहीं होता, बट वी हैव टू बिहेव इन अ मच्योर वे बिकॉज वी आर दी मेच्योर एडल्ट्स। वे. और जब बच्चा शांत हो जाए उसके बाद जो है उसको चीज समझाई जाए, और जब वो उस स्टेट एब्सोल्युटली. ऑफ माइंड में है, जब वो सुन रहा है, तब अगर आप उससे बात करेंगे तो वो उस चीज को समझने की कैपेसिटी में भी होगा, नंबर वन। और नंबर टू, वो ये चीज देख के सीखेगा कि उस गुस्से वाले माहौल में भी मेरे पेरेंट्स ने रिएक्ट नहीं किया, दे डिड नॉट येल एट मी और दे डिड ये नॉट ट्राई टू कंट्रोल मी। तो वो चीज वो खुद भी इम्बाइब करेगा। नहीं तो होता क्या है, जब हम गुस्से में चिल्लाते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि हमें भी गुस्सा आया तो हमें भी चिल्लाना है, या वी हैव टू एक्सप्रेस ourselves in ways which are not appropriate. तो we अप्रोप्रिएट. need to set an example for children to learn, right? तो ज्योति, ऐसी क्या चीजें हैं अब कहना एक बार में, ऑब्वियसली जब शुरू करते हैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी स्पेशली, देन धीरे धीरे तो वी ऑल ट्राई टू लर्न एंड डू द बेस्ट दैट वी कैन, राइट? बट हाउ डू वी काम डाउन आवरसेल्व्स एज पेरेंट्स? क्या ऐसे कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वी कैन बिकम मोर कामर एंड मोर प्रेजेंट एंड लेस रिएक्टिव? Yeah. Less reactive. So one thing which has really helped me out, tried and tested, I want to share here, is I think start doing deep breathing. Firstly, अब ज्यादा मत करिए, just 2 minutes. अब ज्यादा नहीं, 1 minute से शुरू कर सकते हैं. Then you can take it up to 2 minutes, 3 minutes. Depends how much you can do it. Another thing which has really helped me is the meditation. Mm. Because as a parent, it is very important that we calm down and enjoy our present moment. As I said, our constantly to-do list चलती रहती है, what next, what next, and there's so much of overwhelming, जो हमारा routine हो चुका है. It is very important, at least दिन के 15 मिनट तो आप अपने लिए निकालें. And बिल्कुल। I usually make it out a routine, like once I finish my all household chores, at least 15 minutes. Maybe I chant Hanuman Chalisa, आप कोई भी, whatever things which suits you, हम्म। listen to some good music. Once you are done with that, do 10 minutes of meditation. Meditation, I know initially सबके लिए easy नहीं होता, but within a week आप इतने addictive हो जाओगे that the day when I am unable to do it in the morning, maybe I'm traveling somewhere, I'll make sure that सोने से पहले मैं उसे जरूर करूँ. So once you start doing it, you enjoy, and I tell you, your energy level boost up like anything. और एब्सोल्युटली, आई बहुत ही एग्री। आप में वो कामनेस, वो प्रेजेंट कंपोज, एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग दैट इट्स ओके, सब कुछ जरूरी नहीं है मुझे ही करना है. एंड वन मोर लेसन व्हिच आई रियली लर्नड इज कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. आई वाज द ये वन बहुत हु वाज इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्स्टेंटली, या, हम्म। I was the one who want to have a very perfect family, perfect son, and perfect मेरा जो career है, I was juggling in the initial phase. So इतना कुछ चलता था, नहीं ये भी करना है परफेक्ट परफेक्ट, एंड उस परफेक्शन के चक्कर में आई रियलाइज आई वाज टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस. फिर मुझे लगा कि नो, आई एम समवेयर गोइंग रॉन्ग, एंड देन आई राइट इट्स ओके, लेट्स प्रायोरिटाइज द टास्क. जरूरी नहीं है हमें सारी चीजें एक ही दिन में सब कुछ करनी है. Start prioritizing, and let's keep the things which are not important for the next day. Don't overwhelm yourself. And now there are days when I lose some good opportunities also. मुझे लगता है कि ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई डू इट, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा. एंड वंस यू लर्न दिस मंत्रा, ट्रस्ट में हमारी लाइफ बहुत इजी और स्मूथिंग हो जाती है. Absolutely. I believe that the child is not just born to a mother, the child is born into a या, family, right? तो वो सिर्फ एक फैमिली. मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. दिस इज हाई टाइम दैट यू नो
every family member starts contributing towards number one, To household chores, and number one, towards parenting as well. Raising kids as is equally anybody else's responsibility as much as it is the mother's. दो कुछ चीजें हैं जो mothers ही कर सकती हैं, but वो सब कुछ नहीं कर सकती हैं. They need that कैसे help, they need that support structure, and above all, they also need to be seen and heard, because a mother her goes through a lot herself, and for her to be able to give all that she has, she also needs to be in a calm state of mind. तो वन इज कि सपोर्ट स्ट्रक्चर आपके आसपास का थोड़ा सा चेंज हो, ये बिलीफ सिस्टम हम थोड़ा सा पर्कुलेट कर पाएं, और दूसरी चीज अपने आप पे हम काम करना शुरू करें. अगर हम आसपास की चीजें नहीं बदल पा रहे हैं, देन लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद आवरसेल्व्स. इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज व्हाट वी हैव इनसाइड इज व्हाट शोज आउटसाइड. तो वो And you वाली cannot चीज keep people happy. I think आप सबको खुश नहीं रख सकते. So it's बिल्कुल नहीं okay, रख सकते give your 100% and then it's okay. And I think it is सबके very लिए. important हाँ. for, yeah, mothers to set boundaries also, which I learned very late in life. But अब मुझे लगता है if I don't want to do certain things, मैं प्यार से कह देती हूँ कि no, not now, I'll do it later on. वो हम्म. yes yes वाले उससे बाहर निकल के we need to set boundaries, what actually we एब्सोल्युटली. have to do. तो सेटिंग बाउंड्रीज, ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने सीखी थी. दैट्स डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम अप्रिसिएशन. वो जो हमारी कंडीशनिंग है ना, Appreciation. बीइंग अ गुड गर्ल, Conditioning, बीइंग अ yeah. गुड वाइफ, बीइंग अ गुड मदर, तो वो सिर्फ Mother. गुड 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 दूसरों की नजरों में होने के लिए ना हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, और वो बिटरनेस हमारे अंदर ही भर जाती है. तो वो जो हम देना चाहते हैं उसकी जगह वी स्टार्ट स्प्रेडिंग दैट बिटरनेस अराउंड. और ज्योति ने इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर किया, दैट इज डीप ब्रीदिंग. क्योंकि डीप ब्रीदिंग दैट ऑक्सीजन व्हेन इट रीचेस टू योर न्यूरॉन्स, जब आपके Brain, ब्रेन में yeah. जब वो पहुंचती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको काम डाउन करना शुरू कर देती है. आप रिसेप्टिव हो जाते हो, आप चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लगते हो, रादर देन, क्योंकि जब गुस्सा आता है तब तो कुछ समझ में नहीं आता, वी आर जस्ट वेंटिंग एंड वेंटिंग. बट रादर देन वी नीड टू रियलाइज कि वो उस वेंटिंग का असर कहाँ पे जाने वाला है. जो असर हम चाहते हैं हमारे बच्चे में आए, जो असर हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप्स में आए, वो उसका काउंटर इफेक्ट एक क्रिएट करने लगता है. तो फर्स्ट, स्टार्ट डीप ब्रीथिंग. मेक टाइम टू मेडिटेट एंड प्रे, जो भी आपको सूट करता है. लिसन टू गुड म्यूजिक, जो आपके मूड को काम डाउन करता है. Absolutely. गेट आउट इन नेचर फॉर सम टाइम. एक 10-15 मिनट की वॉक के लिए कहीं पे आप जा सकते हैं. वॉच सनराइज एंड सनसेट. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई डू पर्सनली, और ये छोटी छोटी चीजें दे प्ले अ ग्रेट बहुत रोल इन इम्पैक्ट करते कामिंग हैं यू आई थिंक. डाउन. या मूविंग आउट ऑफ द हाउस, वो नेचर से कनेक्ट होके यू फील, आधा तो आप वैसे ही हील हो जाते हो, यू फील सो रिलैक्स एंड गुड. बिल्कुल. बट तो अपने समटाइम्स दिन वी आर में सो थोड़ी थोड़ी टाइम के कन्फाइंड. लिए हाँ. आप टाइम निकालें ना, जैसे 2-1 घंटे आपने काम किया, उसके बाद कुछ मेडिटेशन हो गया, या कुछ म्यूजिक हो हाँ, गया, या कुछ यू जस्ट स्टेप म्यूजिक हो आउट गया. फ्रॉम द हाउस. तो थोड़ा हम्म. सा उस माहौल से जब चेंज आता है ना, तो आपका दिमाग शांत रहता है रात क्योंकि अगर आप उसी माहौल में हमेशा रहेंगे, तो वो वही इमोशंस बिल्डअप होते चले जाते हैं. बिल्डअप होते जाएंगे. बिल्कुल. तो ये एब्सोल्युटली. बहुत ही प्यारा डिस्कशन था, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये छोटे छोटे से एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालेंगे, देन यू विल फील मोर कनेक्टेड विद योर सेल्फ, एंड बी अ बेटर पेरेंट एंड अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. तो नेक्स्ट यस. जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है. अब मदरहुड के बारे में हमने बात कर ली, अपना ध्यान रखने के बारे में हमने बात कर ली. जब मदर चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा होता है ना, जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है. जब बच्चा छोटा होता है तब तो वी हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग, क्योंकि इट्स ऑल लवी डवी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. देन बच्चा थोड़ा सा यस. बड़ा होता है, देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड दे वुड स्टार्ट स्ट्रोइंग टैंट्रम्स, और दे विल गेट स्टबन. फिर वो थोड़े से बड़े और होंगे, देन दे प्री टीन एंड टीन दैट स्टार्ट्स अप्रोचिंग, एंड दे फील दैट they are grown up enough and they want to do everything on their own, though they are yet not ऑन. mentally and physically prepared for the same thing. So इस journey में how can we evolve, how can we keep ourselves prepared to have that bond with our kid throughout the journey. Throughout the journey, yes. I think this is very important, Poonam, which you have raised, because I see a lot of parents, especially teenage वालों को ये लगता है कि बच्चे एकदम से डिटैच हो जाते हैं. Hmm. प्री टीन्स तक भी बच्चे को लगता है कि हाँ, आई नीड माई मदर, आई नीड माई फादर, बट वंस दे आर प्रॉपर टीन्स में आने के बाद दे फील लाइक नाउ वी आर इंडिपेंडेंट एंड अब आप हमारे लाइफ में दखल अंदाजी मत करो. जी. तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जब बच्चा छोटा है, लाइक टॉडलर लेवल पे ही है, या अगर आप टीन्स भी हो गए हो, आप छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज ऐसी करिए जहाँ पे यू ऑल आर knitted टुगेदर.
फॉर हम्म। एग्जाम्पल एटलीस्ट हैव वन मील टुगेदर विथ एवरीबडी इन द फैमिली. कई बार सुबह नहीं पॉसिबल होगा, एवरीबडी इज रशिंग फॉर द ऑफिस एंड स्कूल. मेक श्योर एटलीस्ट डिनर टाइम हम इकट्ठे बैठ के खा सकें, एंड दैट टू विदाउट एनी स्क्रीन एंड ऑल. इट्स जस्ट ऑल ऑफ आर सिटिंग टॉकिंग एंड शेयरिंग. तो एक मील आप अपने साथ बच्चों के साथ जरूर करें. And the second important thing is have some routine जहाँ पे at least आप 15-20 minutes एक ritual बना लो. That undivided family time होने वाला है. वहाँ पे कोई gadgets नहीं होंगे, हम talks करेंगे. What हम्म। I usually do is end of the day we all three of us sit together, my husband, my son. हम अपना अपना discuss करते हैं. This is what happened to me. I went there. This was my experience. My husband also अपने ऑफिस की कुछ चीजें थोड़ी बहुत शेयर करेगा. एंड देन माई सन्स ओपन अप, ओ मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मेरे दोस्त ने ये बोला. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसे फोर्सफुली पूछ भी नहीं रहे. वी आर गिविंग हिम अ स्पेस कि जहाँ पे आप आके डिस्कस करो. हमें हम्म। रिएक्टिव नहीं होना है, जजमेंटल नहीं होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. मे बी वी कैन करेक्ट हिम लेटर ऑन, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो इस तरीके से आप छोटे छोटे रिचुअल्स बना लो, एटलीस्ट कि हम्म। आप बच्चों के साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर सको. वट आई ऑल्सो डू इज वी प्ले यूनो कार्ड्स एट नाइट. जैसे अब बेटा बड़ा हो रहा है तो उसके चॉइस ऑफ गेम्स एंड ऑल भी चेंज होते जा रहे हैं. तो अब यूनो खेलते तो नाउ ये सो लाइक एडिक्टिव. जैसे ही 8 बजे की वो आ जाएगा यूनो खेले, तो एटलीस्ट हम आधा घंटा मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लर्निंग द ट्रिक्स कि कैसे हम्म। खेलना है. एंड वो विनिंग वाला लूजिंग वाला सब चीज सीख रहे हैं. एंड दैट्स अ परफेक्ट टाइम जब आप बच्चे को सिखा सकते हो कि ठीक है, इट्स जस्ट अ गेम. जब वो हम्म। जीत रहा है तो वो बड़ा खुश हो रहा है, पर जब वो हार रहा है तो ही इज बड़ा अपसेट होके बैठा है. एंड वी आर लाइक इट्स ओके. लाइफ में एक ही गेम है ना, दिस इज नॉट द एंटायर थिंग. हम खेलेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई तो जीतेगा. तो इस तरीके से आप उसे सिखा भी सकते हो अबाउट द फेलियर्स. तो एब्सोल्युटली। ऐसे मोमेंट्स आपको भी ढूंढने हैं. व्हाट वर्क्स वेल फॉर योर फैमिली. आपके बच्चों का क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे when my son was small, he used to play carom with his grandfather. तो हम्म। ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज में वो भी बॉन्डेड बॉन्डेड फील करे. एंड हम स्क्रीन से जितना बच्चों को दूर रखें ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे फील कनेक्टेड, वो फैमिलीज के साथ नेटेड रहेंगे. बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने बोला कि हम कुछ एक्टिविटीज ऐसी रखें, कुछ टाइम ऐसा रखें जहां हम सब इकट्ठे हैं एंड देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन. जैसे देयर या कुड बी अ मील ऑफ द डे दैट वी टेक टुगेदर. There could be a game that we play together. And what I do is I share a small bedtime story with my children. So they'll स्टोरी. keep waiting, for that time कि वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी ममा आकर के वो स्टोरी सुना दो. And then they go to bed very easily and in a very happy state of mind. It's very important कि बच्चे को लगे कि I'm not judged for being myself. जज. Though we can correct the child if he is not doing the right thing. बट वो खत्म होने के बाद, वो टाइम खत्म होने के बाद, जब वो अपनी बात अच्छे से बोल चुका है उसके बाद. तो ये चीज़ आपने बहुत वैल्यूबल बोली कि जब बच्चा बात कर रहा है उस टाइम पे उसको वो ओपन स्पेस दें, उसको जज ना करें. ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उस चीज़ को लिए वो अशेम्ड फील ना करे. क्योंकि वी ऑल लर्न थ्रू आवर मिस्टेक्स ओनली. एंड लेट्स टीच देम टू एक्सेप्ट देयर सेल्स विद द राइट्स एंड द रॉन्ग्स एंड देन वी कैन करेक्ट द चाइल्ड. आपने एक चीज और जैसे आप बोली डिजिटल मीडिया वाला जो स्क्रीन वाला वो है या आज के टाइम पे वो एक पेंडेमिक बन चुका है. बच्चों को खाना खाना है तो एब्सोल्युटली. उनको स्क्रीन चाहिए. कुछ स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं तो स्क्रीन चाहिए. स्कूल का काम करना है तो स्क्रीन चाहिए. गेम्स स्क्रीन खेलने हैं चाहिए. तो स्क्रीन चाहिए. तो हाउ कैन वी लिमिट दिस टाइम ऑफ स्क्रीन एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस? या सो जैसे आपने कहा कि बच्चा खाना खा रहा है तो स्क्रीन चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पे द पेरेंट्स हैज टू फर्स्ट themselves understand that we all know ये सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो वो क्या खा रहा है, क्या टेक्सचर है. इट्स जस्ट लाइक वो उसके बॉडी को भी नहीं लगने वाला. So it हम्म। is very important that saying no to screen during the meal time is very important. आप डाइनिंग पे खाइए या भले रूम में खा रहे हो, स्क्रीन है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं टर्न ऑन करेंगे. एंड फॉर हम्म। दैट वी आर ऑल्सो इन द सेम रूल लिस्ट. हमारे लिए भी वो एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड. हम्म। एंड जब बात करते हैं डिजिटल की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिन का आधा एक घंटा दे दो बच्चों को. हाफ एन हम्म। आवर आई थिंक बहुत है, सफिशिएंट. बिकॉज एंटायर डे स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, बाहर आउटडोर प्ले के लिए आप उन्हें टाइम दे दो. बट अगर उन्हें देखना भी है तो 20 मिनट 30 मिनट्स वाला विंडो बहुत है उनके लिए. उससे ज्यादा हम्म। आई थिंक लेट्स एंगेज देम इन सर्टेन एक्टिविटीज. आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, स्केचिंग हो गया,
गेम्स हो गया या और कुछ चीजें जैसे एज अप्रोप्रिएट भी काफी सारे आजकल डीआईवाई किट्स आ रहे हैं। सो हम्म। और अगर हम स्क्रीन वो जो आधा घंटा दे रहे हैं, अगर उस आधे घंटे को भी हम एज अ लर्निंग टूल इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चे के बिल्कुल। लिए। जैसे हम्म। हाँ, तो वो कुछ क्रिएटिव देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी स्पेस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, हमारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो बच्चे को वो क्यूरियोसिटी रहेगी व्हाट नेक्स्ट rather than giving it हम्म। for the entertainment। तो दिस इज व्हाट हम्म। आई पर्सनली डू इट, आई गिव माई सन लाइक कुछ कुछ है जैसे डॉक्टर बाइनोस करके एक बहुत ही अच्छा हाँ। चैनल है यूट्यूब पे। सो हम्म। वे वो क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे क्यों है, सो ऐसे कुछ कुछ आप अपने बच्चों के एज अप्रोप्रिएट आप आराम से गूगल पे चैट जीपीटी पे से आपको अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे। गिव देम दैट दोस चैनल्स, 20 मिनट्स आप दीजिए एंड देन से कि अगर आप ये 20 मिनट्स आपको मिलता है, बियॉन्ड दैट अगर आप करते हो तो आपका कल का स्क्रीन टाइम फिनिश हो जाएगा। तो वो अपने आप बंद कर देगा, उसको पता है कि उसको कल भी चाहिए होगा ये। सो बिल्कुल सही वो बात है। बाउंड्री सेट करना है बस, अगर आप ये कर रहे हो इट्स गुड, इफ नॉट, इफ यू आर क्रॉसिंग दैट टाइम देन टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। तो बच्चे अपने आप उसको पता है कि नहीं मैं 20 मिनट्स करके देन आई लीव इट। तो जितना आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम विजिलेंट रहे, हम अवेयर रहे। इट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन। People, especially teenagers, are trusting unknown people, sharing their all identities, addresses, all the life के जो भी चल रहे हैं चीजें। सो उन्हें नहीं पता, तो डिजिटल सेफ्टी के बारे में पहले हमें अवेयर होना है एंड वी हैव टू कम्युनिकेट दैट टू द चाइल्ड, बिकॉज उन्हें नहीं पता बिहाइंड द स्क्रीन हु इज देयर। तो एब्सोल्युटली। ये सब अवेयरनेस हमें सीख के बच्चों को कम्युनिकेट करने, देन ओनली वन दे आर इन टीनेज, कॉलेज जा रहे हैं, जब हम उन्हें डिवाइसेस दे रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत बिल्कुल। है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो वो हम्म। प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हमें लगता है बच्चा अपने आप सीख जाएगा, वो नहीं होता, दे डोंट नो इट। वो डिवाइस हम ही तो दे रहे हैं ना। एवरीथिंग कम्स विद अ मैनुअल, अगर हम देखेंगे एसी या वॉशिंग मशीन कम्स विद अ मैनुअल। तो जब हम बच्चों को डिवाइस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज अ पेरेंट give them the knowledge, awareness, and then we hand over the device to them। and एब्सोल्युटली। we feel तो like जो आप जितना कह हो रहे हो सके। कि हाँ बिल्कुल, एक डिजिटल स्पेस की अवेयरनेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए ताकि हम बहुत बच्चों ज्यादा। को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें। सेकेंडली, वी नीड टू लर्न हाउ टू सेट बाउंड्रीज एंड गिव देम ऑप्शंस। मतलब अगर स्क्रीन को छोड़ना है करेक्ट, तो उनके पास कुछ एंगेजिंग ऑप्शंस हमको ज़रूर जनरेट करने होनी पड़ेंगे। चाहिए नेक्स्ट कुछ ऑल्टरनेटिव। एक उनके पास एक हॉबी हो जिसको वो फॉलो कर सकें, कुछ एक स्पोर्ट्स हो जिसको वो फॉलो कर सकें, कुछ एक फैमिली टाइम हो जो उसका एक सब्स्टिट्यूट बन सके, और एक कॉन्सिक्वेंस भी होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर आप आज टाइम एक्सीड करोगे तो वो कल के टाइम में से माइनस हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी हाँ, नाइस वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज आप हाइपर नहीं रिएक्ट कर रहे, आप पनिश नहीं कर रहे, बट एक कॉन्सिक्वेंस जरूर है कि अगर अभी आप कुछ जरूर है करोगे तो वो अटैक। आपको पे करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज इन लाइफ अदरवाइज एज वेल। तो बहुत ही अच्छे आपने सजेशंस और टेक्निक्स आज शेयर किए हैं ज्योति, एंड आई एम श्योर दैट द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, स्पेशली mothers, they will utilize these small tips and make huge difference in their child parent journey. Is there any special message that you would want to share with our audience? यस पूनम, सो मैं इसे एक शायरी के साथ कोट करना चाहूंगी जरूर। दैट क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत बदल जाती है, क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत बदल जाती है। एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिन मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्या बात है। क्यों हंसी खेलती जिंदगी आम हो जाती है। So it is very important that we live the life, we live the moment, and I think वो हम ऑटो पायलट मोड पे जो हम कॉन्स्टेंटली फिक्स रूटीन है, उठे ऑफिस गए काम किया आ गए, या एज अ मदर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढे, उसे क्रिएट करें एंड वी लिव, हम उसे जिए ना जस्ट एग्जिस्ट करें ऑन दिस प्लानट। सो दिस वंडरफुल। इज व्हाट आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल द ऑडियंस। बहुत ही खूबसूरत। और जैसे ज्योति ने कहा कि छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी किताब भी लिखी है जिसका नाम है रीस्टार्ट जिंदगी। इस किताब में उन्होंने बहुत ही बेसिक से तरीके से शुरू किया है और आपको बताया है कि जब आपके अंदर वो वॉइड क्रिएट होना शुरू होता है और जब आपको लगता है कि आप अपने आप से, अपने सपनों से दूर जा रहे हैं, तो आप दोबारा से अपनी जिंदगी को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू स्टार्ट योर सेकेंड इनिंग्स, एज दे से। इनके
जिंदगी के तजुर्बे से, इनकी छोटी छोटी शेयर की हुई टेक्निक से आई एम श्योर कि आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप आज का ये एपिसोड आप सबके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर रहा तो प्लीज़ इसे बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जो अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सकें और आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकें। ज्योति, thank you so much for being here with us today, sharing your wisdom. We'll keep having wonderful discussions like these with you in coming days as well, maybe on different topics, and spread the goodness. Thank you for being here today. Thank you. Thank you so much, Philip.